السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں جیکم خان آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سامانیہ گیان گروپ پریوار میں آپ کا سواگت کرتا ہوں. آپ مزید ویڈیو حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں. کل کی کلاس میں ہم نے آپ کے سامنے اردو زبان کا تعارف اور اس کے آغاز و ارتقاء کے متعلق معلومات فراہم کی تھی. اسی کے سلسلے میں یہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہے. اس میں ہم آپ کو اردو زبان کی پیدائش کے متعلق ادبا کے اقوال کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے. ان میں سب سے پہلا ہے محمد حسین آزاد. مولانا محمد حسین آزاد سن 1830 میں پیدا ہوا اور ان کا انتقال سن 1910 میں ہوا. مولانا محمد حسین آزاد اردو زبان کے متعلق فرماتے ہیں کہ اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے. اس سلسلے میں وہ اپنی کتاب آب حیات جو ان کے ایک شاہکار کارنامہ ہے، اپنی کتاب آب حیات جو انہوں نے سن 1880 میں تحریر فرمائی تھی، اس میں بیان فرماتے ہیں کہ اتنی بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے اور برج بھاشا خاص ہندوستانی زبان ہے. اس نظریے کو علمی حلقوں نے اس زمانے میں قبول کیا. یعنی جب انہوں نے یہ نظریہ دیا تھا کہ اردو کی پیدائش برج بھاشا سے نکلی ہے تو اس زمانے میں اس نظریے کو علمی حلقوں نے قبول کیا اور برج بھاشا کو عام طور پر اردو کی ماں سمجھا جانے لگا. اس نظریے کو محمد حسین آزاد سے پہلے میر امن، سر سید احمد خان اور امام بخش صاحبائی بھی پیش کر چکے تھے. کوشچن یوں بھی آ سکتا ہے کہ محمد حسین آزاد کے علاوہ اردو کی پیدائش کو برج بھاشا سے کن نے قرار دیا ہے، یعنی کنہوں نے قرار دیا ہے؟ تو اس میں کیا ہے، میر امن ہے، سر سید احمد خان ہیں اور امام بخش صاحبائی ہیں. دیکھیں، کیونکہ برج بھاشا دہلی کے آس پاس کے علاقوں میں بولی جاتی تھی اور وہاں اس زبان کو خاص مرتبہ حاصل تھا، اس لیے آزاد نے اردو اور برج بھاشا کے رشتے پر زور ڈالا. نمبر 2 ہے حافظ محمود شیرانی. حافظ محمود شیرانی صاحب سن 1880 میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال سن 1946 میں ہوا. حافظ محمود شیرانی نے اپنی تصنیف پنجاب میں اردو جو سن 1928 میں تحریر فرمائی تھی. انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اردو کی پیدائش پنجابی زبان سے ہوئی ہے. اس کی دلیل میں انہوں نے دونوں زبانوں کے صرف و نحو، یعنی دونوں زبان کون کون سی، اردو اور پنجابی، دونوں زبانوں کے صرف و نحو، تذکیر و تانیث اور واحد و جمع کے طریقے میں مشابہت ہونا بتایا ہے. دیکھیں، چونکہ محمد بن قاسم کے بعد محمود غزنوی نے پنجاب اور ہندوستان کے دوسرے علاقوں پر حملے شروع کر دیے. دھیرے دھیرے مسلمان سارے پنجاب میں پھیل گئے. ان لوگوں کی زبان فارسی اور ترکی تھی. جو لشکر میں لوگ شامل تھے ان کی زبان فارسی اور ترکی تھی. جب ان کا مقامی لوگوں سے میل جول ہوا تو یہ زبان وجود میں آئی. محمود شیرانی صاحب لکھتے ہیں کہ اردو دہلی کی قدیم زبان نہیں ہے بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دہلی جاتی ہے، اور چونکہ مسلمان پنجاب سے ہجرت کر کے جاتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ساتھ کوئی زبان بھی لے کر گئے ہوں گے. یہ انہوں نے اپنی کتاب پنجاب میں اردو میں تحریر فرمائی ہے، یہ والی عبارت. دیکھیں، اردو کی پیدائش کے متعلق ایک مشہور عالم، جو پنجابی زبان کے ایک مشہور عالم ہے ٹی گراہم بیلی، انہوں نے شیرانی کے نظریے سے اتفاق کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اردو کی پیدائش 1027 کے لگ بھگ لاہور میں ہوئی. قدیم پنجابی اس کی ماں ہے اور قدیم کھڑی بولی اس کی سوتیلی ماں ہے. دیکھیں، قدیم پنجابی اردو کی ماں ہے، کنہوں نے کہا؟ ٹی گراہم بیلی نے. اور قدیم کھڑی بولی اس کی سوتیلی ماں ہے، یہ کنہوں نے کہا؟ یہ بھی ٹی گراہم بیلی نے کہا ہے. برج بھاشا سے براہ راست اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹی گراہم بیلی نے برج بھاشا سے اردو کے تعلق سے کیا ہے؟ انکار کیا ہے. مسلمان سپاہیوں نے پنجابی کے اس روپ کو جو ان دنوں دہلی کے قدیم کھڑی بولی سے زیادہ مختلف نہ تھا اختیار کیا اور اس میں فارسی الفاظ اور فقرے شامل کر دیے. یہ ٹی گراہم بیلی کا قول ہے. اس کے بعد سید سلیمان ندوی صاحب. سید سلیمان ندوی صاحب سن 1884 میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال سن 1953 میں ہوا. مولانا سید سلیمان ندوی اپنی کتاب نقوش سلیمانی جو 1932 میں انہوں نے تحریر فرمائی تھی، اس میں وہ رقم تراز ہیں کہ مسلمان سب سے پہلے سندھ میں پہنچے، چونکہ محمد بن قاسم کے قیادت میں سن 712 عیسوی میں
मुसलमानों ने सिंध पर हमला किया। तो वो कहते हैं इसलिए करीना कयास ये है कि जिसको आज हम उर्दू कहते हैं, इसका हैयुला इसी वादी सिंध में तैयार हुआ होगा। ये उनका कयास है। चूंकि मुसलमान पहली बार मोहम्मद बिन कासिम के क़यादत में हिंदुस्तान में दाखिल हुए और मोहम्मद बिन कासिम ने सन 712 ईस्वी में सिंध पर हमला किया और राजा दाहिर सैन को शिकस्त देकर सिंध को मुस्लिम हुकूमत का एक सूबा बना दिया और यहाँ मुसलमानों ने तकरीबन 300 साल हुकूमत की। ये बात आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि जब दो जबान बोलने वाले साथ रहें तो धीरे धीरे दोनों जबानों के क्या है अल्फाज मिलने से एक नई जबान पैदा होती है। इसी तरह ये कहते हैं कि अरबी बोलने वाले लोग थे जो लश्कर में थे, जब वो सिंध में उन्होंने क़याम किया और सिंधी लोगों से उनका मेल जोल रब्त ताल्लुक़ रहा तो एक नई जबान पैदा हुई जिसको आज हम उर्दू के नाम से जानते हैं। इसके बाद डॉक्टर शौकत सब्जवारी सन 1908 में पैदा हुए, इंतकाल 1973 में हुआ। डॉक्टर शौकत सब्जवारी ने अपनी किताब दास्तान ज़बान उर्दू जो 1961 में उन्होंने तहरीर फरमाई थी, इसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि उर्दू खड़ी बोली से तरक्की पाकर बनी है, जो खड़ी बोली दहली और मेरठ के आसपास बोली जाती थी। डॉक्टर सुहेल बुखारी, प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन भी खड़ी बोली को उर्दू की असल करार देते हैं। वो फरमाते हैं कि उर्दू की असल खड़ी बोली और सिर्फ खड़ी बोली है और खड़ी बोली दहली और मगरिबी यूपी की बोली है। उसके बाद प्रोफेसर मसूद हुसैन साहब सन 1919 में पैदा हुए, इंतकाल 2010 में हुआ। इन्होंने उर्दू की इब्तिदा के मुतालिक नजरिया पेश करते हुए अपनी मशहूर और मारूफ किताब मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू 1948 में तहरीर फरमाई थी। इसमें उन्होंने दहली और आसपास बोली जाने वाली बोलियों की तरफ तवज्जो दिलाई है। जो दहली और गर्दोनवाह दहली के चारों तरफ बोली जाने वाली बोलियां थी उनकी तरफ तवज्जो दिलाई है। इनका ख्याल है कि उर्दू ज़बान की तश्कील और उसे मातबर लब व लहजा अता करने में हरियाणी और नवाह दहली की दिगर कदीम बोलियों का हाथ रहा है। हरियाणवी ज़बान और जो नवाह दहली के गर्दोनवाह में बोली जाती हैं जैसे मेवाती है, खड़ी बोली है, इन तमाम बोलियों का क्या है हाथ रहा है। हरियाणवी ने उर्दू की तश्कील में हिस्सा लिया और खड़ी बोली, ब्रजभाषा और मेवाती ने इसका लब व लहजा मुतय्यन करने में अहम किरदार अदा किया। उनके नज़दीक हरियाणी या हरियाणवी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, मेवाती दहली के गर्दो नवाह में बोली जाती थी। प्रोफेसर मसूद हुसैन खां के मुताबिक नवाह दहली की ये बोलियां उर्दू का असल मंबा और सर चश्मा है। प्रोफेसर मसूद हुसैन साहब लिखते हैं कि कदीम उर्दू जमना की हरियाणवी बोली से करीब तर थी। ये इनका कौल है खुद का कि कदीम उर्दू जमना की हरियाणवी बोली से करीब तर थी। ब्रज भाषा ने बाद की उर्दू का लब व लहजा मेयार मुतय्यन करने में जरूरी मदद की। ब्रज भाषा ने क्या है उसका लब व लहजा मुतय्यन करने में जरूरी जो मदद थी वो की। वैसे हरियाणवी बोली के करीब तर थी कौन सी, कदीम उर्दू। इसके बाद नसीरुद्दीन हाशमी साहब, इन्होंने अपनी किताब दक्कन में उर्दू में लिखा है कि मुसलमान सबसे पहले कोरोमंडल तट पर आए। चूंकि साउथ इंडिया दक्षिण भारत में मुसलमान सबसे पहले आए थे, चुनांचे उनके और मकामी लोगों के रब्तो जब्त से उर्दू सबसे पहले दक्कन में पैदा हुई। लेकिन उनकी ये बात सही नहीं है क्योंकि दक्कन में आने वाले मुसलमानों की जबान अरबी और दक्कनी लोगों की जबान द्राविड़ थी। अरबी और द्राविड़ जबान के रब्त से तीसरी लिसानी खानदान हिंद आराई की बोली का वजूद में होना नामुमकिन है। इससे क्या है उर्दू के जो उदबा हैं उन्होंने इनकार किया है। डॉक्टर मुहिउद्दीन कादरी जोर सन 1905 में पैदा हुए, इंतकाल 1962 में हुआ। वो कहते हैं यूं तो डॉक्टर मुहिउद्दीन कादरी जोर प्रोफेसर मसूद हुसैन खां के नजरिए की तायद करते हैं, मगर डॉक्टर जोर साहब उर्दू पर हरियाणी के असरात के कायल होते हुए भी, ये कायल है इसको दुरुस्त फरमा लें, कायल होते हुए भी मसूद हुसैन खां के इस नज़रिए पर तनकीद करते हुए लिखते हैं कि हरियाणी ज़बान की पैदाइश उर्दू ज़बान की पैदाइश के बाद अमल में आई है। जो हरियाणवी ज़बान है इसकी जो पैदाइश हुई है वो उर्दू के बाद में अमल में आई है
और अगर कदीम दक्कनी उर्दू की बाज़ खुसूसियात हरियाणवी में मिलती हैं तो उसकी ये वजह नहीं है कि उर्दू हरियाणवी से बनी है, बल्कि उसका असल सबब ये है कि उर्दू और हरियाणवी ज़बान दोनों का सरचश्मा एक ही था, दोनों एक ही से पैदा हुई हैं। डॉक्टर मुहिद्दीन कादरी ज़ोर ने खड़ी बोली को उर्दू की असल करार दिया था। उनका ख्याल था कि उर्दू ज़बान की तह में पाई जाने वाली बोली दहली, मगरबी यूपी, मेरठ के नवाह में बोली जाने वाली ज़बान है और इन इलाकों में बोली जाने वाली ज़बान खड़ी बोली के अलावा कोई दूसरी ज़बान नहीं है। अब आपके सामने ये सवाल रहा कि ये इनके अपने अपने अक़वाल हैं, लेकिन इनमें से सही और दुरुस्त कौन सा है? तो देखिए, इस नज़रियात में से कौन सा सही है और काबिल कबूल है, तो इस सिलसिले में कतई बात कहना आसान नहीं। इनके तज्जिया से ये ज़रूर कहा जा सकता है कि उर्दू एक हिंदुस्तानी ज़बान है। इसकी पैदाइश नवाह दहली की बोलियों में अरबी फारसी अल्फाज की शमूलियत के साथ खड़ी बोली से हुई है। उसके बाद हिंदुस्तानी आइन में उर्दू ज़बान का मकाम और मर्तबा, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दूसरी भाषाओं को जिस तरह शामिल किया गया है, 22 भाषाएं हिंदुस्तान के संविधान में शामिल हैं, इसी तरह उर्दू ज़बान का हिंदुस्तान के संविधान के अकॉर्डिंग क्या मकाम और मर्तबा है, वो भी जरा। हिंदुस्तान मुख्तलिफ कौमों, ज़बान और तहजीब और तमद्दुन का गहवारा है। यहाँ तर्ज रिहाइश और ज़बान में तब्दीली पाई जाती है। इसीलिए आज़ादी के बाद तमाम मज़ाहिब, ज़बानों और तहजीब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या है, आइन मुरत्तब किया गया है, ताकि तमाम मज़ाहिब का, ज़बानों का और तहजीब का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। तो उसके लिए क्या है, एक संविधान बनाया गया। चूँकि मुल्क में बहुत सी ज़बानें सदियों से राइज थी, उसे मुसावियाना हक दिलाने के लिए दस्तूर की 8वीं फहरिस्त में, मुसावियाना मतलब बराबर का हक दिलाने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 ज़बानों को शामिल किया गया, जिनमें हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी, बंगाली, आसामी, पंजाबी वगैरह क्या है, 22 ज़बानें शामिल हैं। सन 1956 में ज़बान की बुनियाद पर रियासत की तकसीम अमल में आई और आंध्र प्रदेश का क़याम हुआ, मगर कोई रियासत ऐसी ना थी जिसे सिर्फ एक लिसानी ज़बान करार दिया जा सके, यानी जिसमें सिर्फ एक ज़बान बोली जाती हो। अक्सरियत ज़बान बोलने वाले के साथ साथ दूसरी ज़बान बोलने वाले भी मौजूद थे। जैसे पंजाबी बोलने वाला सिंधी भी जानता था, तमिल दा मलयालम भी जानता था, तेलुगु दा कन्नड़ भी जानता था। आइन की दफ़ा 350A ने इस बात की ज़मानत दी है, अनुच्छेद 350A, उसने इस बात की ज़मानत दी है कि बच्चों की इब्तिदाई तालीम के लिए मादरी ज़बान बेहतर होगी, लेकिन उसके साथ साथ रियासत की दीगर ज़बानों से भी वाकिफियत होना ज़रूरी है। और दीगर जैसे इंशाउल्लाह खान शाह हैं, मीर अमन, मौलवी अब्दुल हक साहब, इमाम बख्श शहबाई, इन्होंने उर्दू के मुतालिक क्या फरमाया है, तो इंशाउल्लाह खान शाह साहब फरमाते हैं कि उर्दू अरबी, फारसी, तुर्की और ब्रज भाषा पर मुश्तमिल है। मीर अमन साहब फरमाते हैं कि उर्दू मुख्तलिफ ज़बानों के मेल का नतीजा है। मौलवी अब्दुल हक साहब कहते हैं कि अहले मुल्क और सूफिया इकराम के मेल और इर्तिबात से उर्दू पैदा हुई। इमाम बख्श सहबाई फरमाते हैं कि शाहजहांबाद में फारसी और हिंदी के क्या खला मिला से जो बोली मुरव्वज हुई उसका नाम उर्दू है, यानी जो रिवाज में आई। गर्ज हम यूं कह सकते हैं कि मुसलमान सिंध के इलाके में पहुंचे तो उन्होंने सिंधी ज़बान के असरात कबूल किए। फिर पंजाब में महमूद गजनवी के क़यादत में पंजाब फतेह कर वहाँ मुसलमानों ने करीब 200 साल हुकूमत की, तो पंजाबी ज़बान के करीब हो गए। जब दहली पाया तख्त बनी तो खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी, मेवाती ज़बानों का असर कबूल किया। इस तरह उर्दू ने न सिर्फ अरबी, फारसी, तुर्की बल्कि हिंदी, संस्कृत और दीगर ज़बानों व मकामी बोलियों के अल्फाज भी कबूल किए। इस तरह उर्दू ज़बान ने मौजूदा शक्ल इख्तियार की। उर्दू ज़बान, देखिए, उर्दू एक हिंदुस्तानी ज़बान है। ये हिंदुस्तान में पैदा हुई, इसकी पैदाइश दहली के नवाही इलाके में हुई। डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी, सुहेल बुखारी, डॉक्टर जॉन गुकिस्ट ने भी खड़ी बोली को हिंदुस्तान की असल ज़बान करार दिया है। उर्दू ज़बान ख़ास तौर पर अरबी, फारसी, तुर्की, हिंदी, संस्कृत और दीगर ज़बानों के हरूफ से मिलकर वजूद में आई, और इसी तरह इसमें दीगर ज़बानों के अल्फाज भी हैं। उर्दू एक हिंद आर्याई ज़बान है क्योंकि इसका ख़ानदानी लिसानी सिलसिला हिंदुस्तान की कदीम ज़बान संस्कृत से मिलता है।
बहर सूरत उर्दू ने भी दुनिया की दीगर ज़बानों की तरह मुख्तलिफ ज़बानों के असरात कबूल किए। यही वजह है कि उर्दू को एक मखलूत ज़बान कहा जाता है, यानी मिली जुली ज़बान। लिहाजा बाहमी कौल व फ़ैल के लिए, यानी आपसी बातचीत के लिए, अपने जज्बात व ख़यालात, ये जज्बात उसके बाद वाव अलग से लिखना है, ये मिल गया बीच में, ठीक है। जज्बात व ख़यालात को लोगों तक इरसाल करने के लिए ज़बान का होना ज़रूरी था। देखिए ज़बान की अहमियत क्या है। ज़बान ज़ात इंसानी का बुनियादी वस्फ़ है। अल्लाह ताला ने इंसान को हैवान नातिक बनाया है, क्योंकि हैवान गैर नातिक जानवर इस नेमत अजीमा से महरूम है। नातिक के माने होता है बोलने वाला। अल्लाह फरमाते हैं वअल्लमना मंतिक़त तैर, कि हमने उसको क्या है, परिंदों की बोली अता फरमाई, किनको, सुलेमान अलैहिस्सलाम को। तो बोलने वाला, देखो हैवान दुनिया में सभी है, फर्क ये हैवान नातिक इंसान को कहते हैं, हैवान गैर नातिक जानवर को कहते हैं। ज़बान एक तरफ आला नुत्क़ है तो दूसरी तरफ वसीला इजहार भी है। ज़बान के ज़रिए इंसान में ताक़ुल, विजदान, गौर व फिक्र की सलाहियत की नशोनुमा होती है। ज़बान एक उज़्व तकल्लुम भी है जिसके ज़रिए इंसान अपने ख़यालात का इजहार करता है। ज़बान ही वो शय है जिसने दुनिया में तहज़ीब व तमद्दुन और मिलजुल कर रहने की बुनियाद डाली। आपको रीड के मुतालिक और इसी तरह आप इन्हीं वीडियो से CTET, RTET, MPTET, UPTET और जितने भी उर्दू कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उन तमाम की तैयारी कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।